my profound privilege now to introduce before you, ladies and gentlemen, the cornerstones of this majestic institution. They are none other than the principals who have given their dedicated, spiritual and sincere services to this institution named Hartman College. Today, whatever we are reaping, it's just being by the labor they have put in. It's my privilege, and I request the audience to please welcome these cornerstones on stage. Father Arnold Rebello, a humble request to you to please join us on stage. A man known for his discipline. The administrative head, Father Richard Pinto. A man who taught us time management is life management, Father Lawrence Salvana. And of course, ladies and gentlemen, under whose able guidance and leadership today we are witnessing this glorious as it's none other than Father Dr. Herman Mensch. So let's once again give a huge round of applause to all these majestic personalities. A big thank you to you, dear Father, because you have helped us also to grow. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Likewise, our college coordinator, Mrs. Shalini Juneja, believes that every job of yours is a portrait of your personality, so she believes in making yours the best. She turns all the cans into can and dreams into plan. Congratulations to you, ma'am, on this privileged day. To the world, you must be teachers, but to this institution, you are the epics who have given their sincere years of dedicated and inspirational services. It's my profound privilege to announce the name of the teachers who have served this institution for more than 25 years. Please put your hands loudly for Ma'am R. John, continuously serving this institution since last 44 years. Ma'am P.G. Lyle for her 39 years of service. Ma'am Asha Singh, her 35 years of dedicated service. Ma'am R. Flynn gave us her 31 years of sincere services. Ma'am Usha Costanzo, who brought out the tiny saplings into plants and blooming flowers with 31 years of service. Ma'am R. Solomon with 30 years of service. Ma'am Venu Segal with her 26 years of round-the-clock service. And Ma'am Vinita Singh, again with 25 years of services. At this prestigious moment, I only wish from God Almighty, may He bless you with plenitudes of blessings and may you soar greater and greater heights when and wherever you go. I think this is the most beautiful and cherishable moment. इनकी smiles और broad हो जाएंगी. If you please put your hands loudly for them, and automatically this picture will become the best picture ever. A sincere and heartfelt thanks to the chief guest of our day, Most Honorable Governor of UP, Sir Ram Naik ji. Thank you, sir, for doing the honors and for blessing us. It's now a humble request to you to kindly address the august persons assembled here with your words of wisdom. हिंदी में बोल सकता हूँ? हार्टमैन कॉलेज बरेली के सुवर्ण महोत्सव के मुख्य अतिथि रेवरेंड बिशप
डॉक्टर इग्नेस डिसूजा जी, प्रिंसिपल रेवरेंड फादर डॉक्टर हरमीन सिंह मिंज जी, प्रोविंशियल रेवरेंड फादर रेमी शेख काजी, पूर्व प्रिंसिपल रेवरेंड फादर अर्नोल्ड रिबोला जी, कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारीगण, पूर्व प्राचार्य, पूर्व शिक्षकगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार मित्र, छात्र छात्राओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं ऐसे एक, अब आप तो कॉलेज कहते हैं, हमारे नज़र में तो ये स्कूल होता है, लेकिन स्वर्ण महोत्सव के समारोह में आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक ऐसा सुंदर विश्व मुझे आप देखने के लिए मिला। जिस प्रकार का कार्य 50 साल में हुआ है, और कोई भी संस्था के लिए 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, ये उसके जीवन में महत्वपूर्ण ऐसे पड़ाव होते हैं। ऐसे पड़ाव के सुवर्ण महोत्सव के कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। वैसे मैं यहाँ आया तो मुख्य कारण तो ये थे कि आज के केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री आपके यहाँ के सांसद, और मैं जब पेट्रोलियम मंत्री था तब मेरे जो राज्य मंत्री थे ऐसे श्री संतोष गंगवार के आग्रह के निमंत्रण पर मैं आया हूँ। और कैसा देखिए, वो यहाँ के सांसद है, वैसे तो यहाँ हक से वो होना चाहिए थे, लेकिन आज प्रदेश में चुनाव का प्रारंभ हुआ है, आचार संहिता लगी है, और 4-5 दिन आप आचार संहिता के उद्घाटन के कई किस्से अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आचार संहिता का अनुशासन पूर्ण कैसा व्यवहार किया सकता है वो गंगवार जी ने यहाँ पर बताया, और इसलिए उनके अनुपस्थिति में उनका अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि इसी प्रकार अब जब तक चुनाव पूरा होता है, सभी पार्टी के मान्यवर, सभी पार्टी के उम्मीदवार, उनके समर्थक ऐसे ही शान के ढंग से ये जो एक दृष्टि से जनतंत्र का महोत्सव भी शुरू हुआ है उसमें अपना व्यवहार करें, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूँ। ये शिक्षा चलाने में किसने किसने योगदान दिया है, फिर वो प्रिंसिपल हो, फिर हो शिक्षक हो, फिर फादर हो, जिन्होंने इसमें योगदान किया है, ऐसे कुछ प्रातिनिधिक लोगों का यहाँ पर अभिनंदन किया है। और ये बात सही है कि ऐसे कोई भी संस्था 50 साल चलती रहे और उसमें योगदान जिन्होंने दिया है उनका स्मरण करना, और साथ ही साथ उनको विश्वास भी दिलाना कि आपने 50 साल में जिस प्रकार का काम किया है उसी प्रकार, और उसी प्रकार नहीं तो उससे भी बेहतर काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। इस प्रकार का विश्वास जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हम सबको मिलते हैं। और 4000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब पूर्व छात्राओं के विशेष ऐसे कार्यक्रम, अभी के छात्रों के कार्यक्रम हमने देखे, और जिन छात्रों ने
बहुत अच्छा काम किया है, उनका भी हमने अभिनंदन यहाँ किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे मैंने हिंदी में इसलिए बोलना शुरू किया कि मैं अंग्रेजी ज़्यादा बोलूँ तो शायद गलतियाँ ज़्यादा करूँ। वैसे हिंदी में भी मैं गलतियाँ करूँगा क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। फिर भी अंग्रेजी में जो कहा जाता है कि स्कूल इज़ नोन बाय द स्टूडेंट्स, और इस भूमिका में जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ छात्राओं ने किया, मैं सही ढंग से उनका अभिनंदन करता हूँ, और जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया है उनका भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक के बाद एक परफॉर्मेंस की टीम आती थी, और जिस प्रकार से जिस शान के साथ कार्यक्रम करने के बाद नीचे उतर जाती थी, मैंने तो इस प्रकार का परफॉर्मेंस जीवन में पहले दफे देखा है, और इसलिए मैं संयोजकों का अभिनंदन करता हूँ। और सच बोलूँ तो मुझे ईर्ष्या भी होती है। मुझे ईर्ष्या इस बात की है कि मैं महाराष्ट्र के जिस देहात की आबादी 1,500 है, वहाँ मेरी 10वीं तक मतलब शालांत परीक्षा तक पढ़ाई हुई। मुश्किल से हमारे स्कूल में 200-250 छात्र थे। मेरे पिताजी भी उस हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन हमारे स्कूल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, न खेलने की व्यवस्था थी। स्कूल में जाते हैं, हाँ इतना जरूर है, आज के दिनों में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जो पहला हमारा पीरियड होता था, हमारा स्कूल 2 टर्म्स चलता था, एक सुबह और शाम, वही स्कूल, क्योंकि देहात के स्कूल में इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे दिनों में थी। और उसका पहला पीरियड जो होता था तो सूर्य नमस्कार डालने का पहला पीरियड होता था। और आज मैं आपको बता दूं कि 82 साल पूरे होने के बाद भी मैं खड़ा रहकर भाषण कर रहा हूं, तो उसका मुख्य लाभ तो मुझे सूर्य नमस्कार से हुआ है। और इसलिए बहुत अच्छा दर्शन, और ख़ास करके अतुल्य भारत के जो कार्यक्रम दिखाया गया, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने भिन्न भिन्न प्रदेशों को मैं थोड़ा सोच रहा था कि मेरा महाराष्ट्र आएगा या नहीं, लेकिन जब गणपति आया तो मैंने सोचा कि अभी महाराष्ट्र आएगा, और उसमें कोल्हापुर भी आ गया, जहाँ से मेरा ताल्लुक बहुत नज़दीक का है। बहुत अच्छा लगा इस प्रकार के कार्यक्रम के कारण, और इसलिए मैंने कहा कि इतना सुंदर कार्यक्रम, मैं भी बचपन में ऐसे स्कूल में हो जाता तो मैं भी कुछ बन जाता था, इसलिए मुझे ईर्ष्या है। लेकिन अभी दिन चले गए हैं, लेकिन देखने के बाद मैं उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ जरूर कहूँगा कि कोई स्कूल का, कॉलेज का कार्यक्रम देखना है तो किस प्रकार से उसका आयोजन किया जाता है, उसका एक मॉडल आज यहाँ पर देखने के लिए मिला। बहुत बहुत अभिनंदन है। शिक्षा के प्रगति में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और यह यहाँ के शिक्षकों ने दिखाया है। और जो भी विद्यार्थी पहले स्कूल में आता है, मैं तो मानता हूँ कि वो मिट्टी के जैसे होते हैं। अब मिट्टी को फिर से पानी मिलाना, फिर उसमें से मूर्ति बनाते समय जिस प्रकार की कुशलता एक मूर्तिकार की होती है, उसी प्रकार की कुशलता शिक्षकों की होती है। और ऐसे शिक्षक जहाँ है वैसे ही उसी का नाम होता है। और इसलिए जिन शिक्षकों ने इस प्रकार के स्कूल में अपना योगदान दिया है, उनका प्रातिनिधिक अभिनंदन तो हमने किया है। 30 साल, 32 साल, 35 साल एक स्कूल में इस प्रकार से शिक्षा देना, और वह भी महिलाओं ने, एक बड़ा अभिनंदनीय इस प्रकार का कार्य है। अब मैं और कुछ कहने वाला था, लेकिन उसमें तो जो मैंने थोड़ा लिख के लाया है, मैं ये कहने वाला था कि विद्यार्थियों को मैं बताने वाला था कि भाई आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई अच्छी करो, मेहनत से पढ़ाई करने का बड़ा लाभ होता है।
और मैंने सोच के लाया था कि ऐसा कहने के बाद भी मैं कहने वाला था कि भाई पढ़ाई करो, बहुत ज़ोरदार पढ़ाई करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, लेकिन किताबी कीड़े मत बनो। ऐसा मैं कहने वाला था और फिर ये कहने वाला था कि आप ज़रा मैदान में जाओ, खेलो कूदो, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा करो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप अच्छी तरह से सहभागी हो, ऐसा मैं कहने वाला था। लेकिन यहाँ तो सब मुझे देखने के लिए मिला है और इसलिए मैं सभी का फिर एक दफ़े अभिनंदन करता हूँ। ऐसे छात्र ही देश के लिए अच्छे नागरिक बनते हैं और देश के लिए जब अच्छे नागरिक बनना है तो स्कूल में पढ़ाई करना, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करते समय हम और अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं इसके बारे में जो सोचना होता है वह सोच बहुत अच्छी ढंग से है। और इसलिए ऐसे समय पर मैं छात्रों को 2-3 बातें कहने वाला हूँ। एक पहली बात तो आप छात्र हैं और छात्र कहने के बाद छात्राएं भी उसमें आ जाती है। आपका धर्म कौन सा है और धर्म कौन सा है, और मैं क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज में खड़ा हूँ तो धर्म कौन सा है ऐसा पूछा तो कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मुस्लिम हूँ। लेकिन छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका धर्म एक ही है और वो